फ्रेंड्स, हाउ आर यू। टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं। अब इसको करते हैं। देखिए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। मैं ओनली आई एम गिविंग द सम मेन गाइडलाइंस रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए ये क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क पता है ना, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है। जैसे ये this is a two port network. Okay, I1 and I2 currents enter. Okay, at one terminal there is V1 input voltage and the other terminal there is V2 output voltage. Okay, so a two port network has two pairs of uh, accessible terminals. The one pair represents the input and the other represents the output. So both the currents I1 and I2 just enter the network and the polarities of the voltages are shown. So there are four variables: V1, V2, I1, I2, and from these four variables, two can be taken as independent, okay, and the remaining two will be dependent variables. Now let's come to the question. See, you have to calculate the Z parameters. As you already know that what you have the Z matrix as V1, V2, okay, and this is what Z11, Z12, Z21, Z22, and this is I1, I2. Okay, now if I just want in short form, this is a T network. Okay, but let me explain you with some uh, brief points. Like for example, let I2 is equal to 0. What are the Z parameter equations? V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Okay, so whenever the I2 is 0, what will we have to calculate? Z11 and Z21. And when I1 is equal to 0, what we have to calculate? Z21 and Z22. Okay, so if I2 is equal to 0, the condition is if I2 is equal to 0, then you just write down the KVL equation. V1 is equal to I1 of ZA plus ZB. Okay, this will be the first loop equation. So Z11 is equal to V1 upon I1 is equal to ZA plus ZB. Okay, and similarly Z21 is equal to V2 by I1 with I2 equal to 0. So what V2 will be equal to? V2 is equal to the I1 will be flowing through this loop also. So this V2 is equal to I1 into Z, I1 into ZB, because I2 is 0 here and ZC, there will be no current flowing through this ZC impedance. So the current I1 is flowing directly through ZB also. That means the current will be flowing in the loop uh, with having impedance ZB also. So not in the full loop, only in this second loop, that means which with the having impedance ZB, with ZB is the impedance. Now, so this will be I1 into what? I1 into ZB. Okay, so this is I1 into ZB. So Z21 is equal to what? ZB. Now so this is what? This is Z21 is equal to ZB, and this is what? Z11 is equal to ZA plus ZB. Okay, now let I1 is equal to 0. Again, let I1 is equal to 0. When I1 will be equal to 0, then what will happen? You have what? You have ZA, ZB and ZC. ZA, ZB, ZC with I1 equal to 0 and I2 is flowing through it. This is V2 plus minus, this is V1 plus minus. Now V2 is what? V2 is equal to I2 of ZB plus ZC. So Z22 is what? Z22 is V2 by I2 with I1 equal to 0 and this is equal to ZB plus ZC. Now what will be V1? V1 will not be equal to ZA I1 as I1 is 0, so ZA will also be 0. So that means I2 current will be flowing through ZB also, this will be, so V1 is equal to I2 into ZB. Okay, so
uh, you what you can do further, that this Z12 you can calculate Z12, that means V1 by I2 with I1 equal to 0, and this is ZB. Now ZB, so this impedance matrix is equal to what? Z11. Just write down the values now. Z11 is what? This is ZA plus ZB, okay, and this is Z11, and Z12 is what? It is ZB, and Z22 is what? This is Z22, okay, this is Z22. So this is Z11, this is Z12 ZB, this is Z21 ZB, and this is ZB plus ZC. So what you have noted here in this question, see, in this question, now I have told you the full explanation. Now I will tell you the short answer. As you know, this is a T network, ZA, ZB and ZC. This is a T network. This is a two-port network. This is V1 plus minus, this is V2 plus minus, this is current I1, this is current I2. So if this is the second method, okay. Now you should be knowing, whenever there is a T network, so Z11 is equal to ZA plus ZB. This is the formula you have to be noted. That means ZA, if this is see, if ZA is taken to be as Z1, this is Z2, Z3 and this is Z2. So that means this will be Z1 plus Z3. Okay, that means Z1 is what? ZA, and Z3 is what? ZB. Now Z22 is what? Z2 plus Z3. That means it will be ZC plus ZB. Okay, and yeah, this is ZA. 1 minute. This is ZA plus ZB, and Z22 is what? ZA plus ZB and ZB plus ZC, na? See, for ZA plus ZB, ZB plus ZC, yes. So this is what? ZC plus ZB, this is Z22, and Z12 is equal to Z21 is equal to Z3 is equal to ZB. So this is the required formula. You have to just write down the formula and then put down the values. Now next question is, see, the following readings are obtained experimentally for an unknown two-port network. Output is open and input is open. Z parameters, these are the options. Output open means this is again ZA, this is ZB, this is ZC, this is current I1 flowing through input terminal, and this is current I2 flowing through output terminal, and these are the impedances. Now you have given that output is open when we know that V is equal to Z into I, impedance into current. This we all know. Okay, so if I2 is 0, then Z11 is equal to V1 upon I1, and Z22 is equal to V2 upon I1. So Z11 is V1 upon I1. That means V1 is what? 1 minute. Z11 is V1 upon I1. That means V1 is what? Output is open. That means this is V1. So this is 80 volt, and I1 is what? This is 10. So this is 8 ohm. Okay. Similarly, Z22 is equal to what? Z22 means we will calculate it further, but with I2 equal to 0, again with I2 equal to 0, what we can calculate? We can calculate Z21 is equal to V2 by I1 with I2 equal to 0. So V2 is what? 60 and I1 is 10. So this is 6 ohm. So that means we have Z21 6 and we have Z21. That means this is 6 and Z11 is 8. Now Z22 we have to calculate. When Z22 we have to calculate, so this is I1. When I1 is equal to 0, so Z22 is V2 by I1. No. 1 minute. Z22 is V2 by I2, sorry. So V2 is what? When input is open means I1 is 0. When output is open, it means I2 is 0. Okay, simple. So that means V2 is what? V2 is 40, and I2 is what? It is 5. That means it is 8 ohm again. Hona. And Z12 is equal to what? V1 by I2 with I1 equal to 0. So that means V1 is what? This is 80. 1 minute. What we have done here?
सी कैलकुलेशन मिस्टेक इसीलिए हो जाती है, थोड़ा सा ये टेबल दिया है ना, सो यहाँ पे आप देखिए जरा कि Z12 आप निकाल रहे हैं, तो Z12 V1 जो होगा आपका ये 80 नहीं होगा, क्योंकि ये तो आउटपुट ओपन के केस में है। इनपुट ओपन के केस में दिस विल बी 50 वोल्ट, सो यहाँ पे ये जो होगा ये 50 हो जाएगा। Z12 मीन्स V1 बाय I2, तो V1 50 हो गया और I2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, दैट मीन्स इट इज 10 ओम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा, इम्पिडेंस मैट्रिक्स होगा आपका Z11 होगा 8, Z22 होगा आपका 8, यही होगा ना, Z12 इज वॉट, इट मीन्स इट इज 10 एंड Z21 इज वॉट, इट इज 6, 8 10 6 8। देखिए अपनी कॉपी निकालिएगा और उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, व्हेन Z11 इज इक्वल टू Z22, ये Z11 है, ये Z22 है, इट मीन्स यू हैव सिमेट्रिकल नेटवर्क, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, एंड Z12 इज नॉट इक्वल टू Z21, दैट मीन्स ये आपका नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क है, दिस इज नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो आप इसमें ये भी एक चीज़ कर सकते हैं कि दैट मीन्स इट इज Z11, दिस इज Z12, दिस इज Z21, दिस इज Z22, तो आप खुद ही देख लीजिए कि Z12 इज नॉट इक्वल टू Z12, इट मीन्स ये नॉन रेसिप्रोकल है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, 8 10 6 8। हैव यू अंडरस्टूड? आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते नहीं है ना, तो थोड़ा सा लिखिए भी, तो मुझे पता भी चले दैट यू आर गेटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था अबव मेंशन टी नेटवर्क एंड जेड, ये आपका टी नेटवर्क है, आप यहाँ से Z11 निकालिए, क्या होगा, ये Z1 है, मान लीजिए ये Z3 है और ये Z2। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था कि ये Z1 Z2 Z3 अगर आप लेते हैं, Z1 Z2 Z3, तो Z11 क्या होगा, Z1 प्लस Z3, दैट मीन्स इट इज ZA प्लस ZC। Z22 क्या होगा, Z22 होगा आपका Z2 प्लस Z3 एंड दिस इज ZB प्लस ZC, और जो आपका Z12 इज इक्वल टू Z21 होगा, ये ZC होगा। तो आपका आप खुद ही देख लीजिए ये होगा, लेकिन आपको इसमें वैल्यूज दिया है, आप देखिए ZA की वैल्यू दी है 2 और ZC की वैल्यू दी है 3 एंगल 90 डिग्री, 2 प्लस 3 एंगल 90 डिग्री, क्योंकि वो जो ZA है वो कितना दिया है आपको। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक ये तो मैंने आपको भी बताया, अब आपको इसमें मुझे लगता है KVL लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग KVL द लूप इक्वेशंस विल बी V1 इज इक्वल टू वॉट, ZA की वैल्यू कितनी दी आप लिख लीजिए 2 एंगल 0, ZB की वैल्यू दी है आपको 5 एंगल माइनस 90 डिग्री, तो आप इसको माइनस 5J लिख सकते हैं। Z3 की वैल्यू हो जाएगी J3, तो आप इसमें देखिए कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू, यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 2I1, ठीक है, और क्या होगा बताइए 2I1 होगा, प्लस मैं इसको क्योंकि JC 3 एंगल 90 डिग्री है, तो J हम इसको J3 भी लिख सकते हैं ना, तो दैट इज J3 JC हो गया, एंड इट विल बी I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट्स जा रही हैं, I1 भी जा रही है एंड I2 भी जा रही है, ओके ये भी जा रही है। अब आप इसमें देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, J3 2 प्लस J3 और ये I1 हो जाएगा, और ये J3 I2 हो जाएगा। फिर आप ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें देखिए V2 निकालना है, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप इसमें जरा नेटवर्क देखिए क्या होगा, हाँ तो V2 निकालना है, तो V2 के लिए आपके पास माइनस 5J I2 होगा, माइनस 5J I2 होगा, एंड प्लस आपका J3 I1 प्लस I2 होगा, यानी कि ये जो होगा आपका J3 I1 प्लस I2 होगा। तो आप इसमें देख लीजिए इसकी वैल्यू हो जाएगी J3 I1 और इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 3J माइनस 5J I2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी J3 आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो J3 I1 हो जाएगी एंड माइनस J2 I2 हो जाएगी। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो आपका Z मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये होगा आपका कुछ 2 प्लस J3, ये वो आपका Z11 हो गया, ये आपका Z22 हो गया, दैट मीन्स ये माइनस J2 हो जाएगा। Z12 आपका कितना है, Z11 प्लस Z12 J3 हो जाएगा, और ये भी आपका J3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से खुद ही देख लीजिए कि क्या ये सिमेट्रिकल है।
देखिए ये सिमेट्रिकल तो नहीं है लेकिन ये रेसिप्रोकल ज़रूर है। अगर आप देखें इसको, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। Z11 इज़ नॉट इक्वल टू Z22, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे ये जो है ये Z11 है, ये Z12 है, ये जो है आपका Z21 है और ये Z22 है। तो यहाँ पे ये Z11, Z12, Z21 और ये Z22, तो ये जो वैल्यू है जब Z11 नॉट इक्वल टू Z22 है तो ये क्या होगा, ये तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। दिस इज अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। और ये जो Z12 इक्वल टू Z21 है, ये क्या है, ये आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क है। दिस इज योर रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा असिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने सोचा कि छोटे मोटे क्वेश्चन कराने से अच्छा ये वाले पहले करा दूं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए ये आपका एक तरह से टी नेटवर्क है। अब इसको भी मैं एक शॉर्टकट मेथड से अभी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मार्कर चेंज करते हैं क्या, मैं ये पिंक मार्कर ले। देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एडमिटेंस दिया हुआ है तो इसमें ये पाई सर्किट है, पाई सर्किट इस फॉर्म में होता है ना। तो आप क्या करेंगे, KCL एट नोड ए लगाएंगे। आपका नोड ए कौन सा है, मान लीजिए यही नोड ए है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V1 YA, क्योंकि आपका YA क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, तो V बाई Z ही होता है ना। तो आप इसको लग सकते हैं V1 YA प्लस आप इसको और क्या लिख सकते हैं, ये आपका नोडल B हो गया। तो यहाँ पे ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2, यानी कि प्लस V1 माइनस V2 ऑफ YC, ठीक है। तो यानी कि इसको आप फर्दर इसको सॉल्व, ये हो जाएगा YA प्लस YC ऑफ V1, ठीक है, एंड माइनस YC ऑफ V2, माइनस YC ऑफ V2, हाँ सॉरी। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप लगाएंगे KCL एट नोड B। अब नोड B में KCL लगाएंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू V2 YB, ठीक है, एंड प्लस V2 माइनस V1 ऑफ YC, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस YC V1 प्लस माइनस YC V1 प्लस YB प्लस YB प्लस YC ऑफ V2, YB प्लस YC ऑफ V2। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशंस जब आप रखेंगे तो आपके पास जो एडमिटेंस मैट्रिक्स होगा फ्रॉम बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वैल्यू होगी YA प्लस YC, ये YB प्लस YC, मतलब ये आपका Y22 है, ठीक है। ये माइनस YC, ये माइनस YC, ये आपका ये मैट्रिक्स हो गया। दैट मीन्स मैं आपको बता देती हूँ, ये Y11 है, ये Y12 है, ये Y21 है, ये Y22 है। तो ये Y11, Y12, Y21, Y22, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। दिस इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर कोई वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है, यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर जो आपका Y है एडमिटेंस, ये 1/R हो जाता है, YL आपका 1/SL हो जाता है और YC आपका SC हो जाता है। तो एक चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे इसने किया है। अब इसका एक सेकंड मेथड भी मैं बता देती हूँ। सेकंड मेथड क्या है, देखिए सेकंड मेथड में मैं यही बता देती हूँ। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जो Y11 होगा वो YA प्लस YC डायरेक्ट फॉर्मूला है, Y22 आपका YB प्लस YC होगा और जो Y12 Y21 होगा ये माइनस YC होगा। तो यहाँ माइनस YC आया, यस, YA प्लस YC, यस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये टू पोर्ट नेटवर्क वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज इसरो, वेदर इट इज नेट। ये हमेशा इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली मैंने इसमें लिखना भूल गई, ये Z1 J40 है, ये J3 है माइनस J100, ये Z2 है J80। अब आप इसमें देखिए कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड y पैरामीटर्स ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क। सॉरी ये मैं इसको करना भूल गई थी, पेस्ट करना। तो इसमें आप देखिए इसको क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है एडमिटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ Z, मतलब Z इनवर्स होता है एक्चुअली। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले तो आप
ये निकाल लीजिए इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एक टी नेटवर्क है तो टी नेटवर्क में क्या होता है, अगर ये Z1 है, ये Z3 है, Z2 है, तो Z11 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3, दैट मीन्स इट इज वॉट J40 माइनस J100, तो ये कितना हो गया -60, मैं यही लिख देती हूँ। Z12 इज इक्वल टू वॉट, देखिए ये हो जाएगा Z12 इज वॉट, इट इज इक्वल टू Z3 ओनली ना, तो ये आपका -J100 हो गया। अब आप देखिए Z21 इज इक्वल टू वॉट, इट इज J80 माइनस J100, क्योंकि ये क्या है आपका Z21 इज वॉट Z2 प्लस, नहीं सॉरी, ये Z22 के केस में आएगा, आई एम सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि जो Z21 है ये आपका क्या होगा, इट इज इक्वल टू Z3 माइनस J100, और ये जो है आपका Z22 दिस इज इक्वल टू प्लस Z3, यानी कि इट इज J80 माइनस J100, यानी कि ये माइनस J20 हो गया। तो दैट मीन्स आपका, मैंने इसी में सॉल्व किया है, तो ये जो आपका इम्पिडेंस मैट्रिक्स है दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस J60, ये पूरा आपने, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट इट्स एडमिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर कैसे निकालते हैं, देखिए y इज इक्वल टू z इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाय मॉड z एडजॉइंट z। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एडजॉइंट z का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना, जॉइंट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a बाई डिटर्मिनेंट, ऐसे कुछ होता है ना, क्या होगा यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, सॉरी A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट तो निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा, देखिए इसमें आपको ये करना है कि ये जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस J60 इंटू माइनस J20, तो माइनस J स्क्वायर 1200, तो ये तो प्लस 1200 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया आपका माइनस J100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस J स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो ये इस तरह से नहीं होगा, ये आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे, मैं अभी क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है। देखिए इसमें यहाँ पे जो आएगा ना, एक्चुअली मेरा शायद थोड़ा गलत हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से होगा, दिस माइनस दिस करके कुछ होगा ये। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा इसका जो आंसर आ रहा है ये हो रहा है कुछ माइनस J20 J100, क्योंकि इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस करके साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस J20 माइनस J60 एंड प्लस J100 ये सॉल्व पूरा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इसकी वैल्यू कुछ है आ रही है 8800, जस्ट प्लीज़ इसको आप चेक कीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। अब आप इसको बस इसमें से डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल आएगा आंसर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट z कैसे निकालना है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट z कैसे निकालना है, ऐसे ही निकलेगा वैसे। ये J60 देखिए ये होगा J A इनवर्स पर एडजॉइंट A, नहीं सॉरी, ये जो J है इसका 100 स्क्वायर है, तो ये कुछ हाँ इस तरीके से होना चाहिए, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, 1 2 3 4 एंड प्लस 1 2 0 0, नहीं अगर ये ऐसे भी हो रहा है, अगर यहाँ पे तो ये 8 ही आएगा और यहाँ पे 8, हाँ ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये होगा कुछ कैसे होता है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ z कितना होता है, ये जो आपने लिखा है इसकी वैल्यू कुछ होती है मैग्नीट्यूड ऑफ Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, तो ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है, देखिए ये वैल्यू है आपकी माइनस J60 इंटू माइनस J20 माइनस J60 इंटू माइनस J20 माइनस Z12 Z21, मानी कि माइनस J100 इंटू माइनस J100। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस J माइनस माइनस प्लस J स्क्वायर माइनस, तो ये कुछ माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस एंड J स्क्वायर माइनस, ये जाएगा 1200 और ये माइनस, और इस केस में माइनस माइनस प्लस J स्क्वायर माइनस, और ये
ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये कुछ -1200 एंड प्लस ये इस तरीके से आएगा, तो इसका आंसर 8800 आएगा। अब इसको बस आप पूरा डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका ये निकल आएगा। ठीक है, इसमें आप इसकी वैल्यू, जैसे मैं एक आंसर लिख देती हूँ क्योंकि ऐसा भी टाइम वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। y11 की वैल्यू कुछ आएगी -j20/8800 इज इक्वल टू -j2.27 इंटू 10 की पावर -3 महोज। ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो टिल देन मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर इम्पिडेंस दिया हो टी नेटवर्क में तो पहले हम उसका वाई पैरामीटर कैसे निकालते हैं। टिल देन आप थैंक यू, मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। प्लीज़ देखिए, अगर और भी यूट्यूब में बहुत बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा जो भी है मैं अपनी तरफ से कंटेंट अगर अच्छा दे रही हूँ, अगर मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ही हैं मेरी फैमिली। थैंक यू। ओके।